Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on students, now we'll start the problems on valuation of goodwill. In the previous session, we have completely discussed the concept, the meaning, features, all these things about goodwill. Theory part we have completed. Now we'll start the problematic part. The first question. So before this starting of this question, I already request you again and again, before starting and watching the video on problems, get a printout of all the problems in the link below. In the description, I have given the link. Take a printout of that link, then you can have all the problems on hand before watching the video. First problem, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2/5, 2/5, 1/5. Three partners are there. It was provided in the partnership agreement that in the event of death or retirement of a partner, goodwill should be calculated on the basis of 3 years purchase of the average profit of the preceding 5 years. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर का अगर डेथ हो गया तो वो टाइम पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे और गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे. तो 3 years purchase of the average profit of the past 5 years. तो पीछे के 5 साल का एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे, वो एवरेज प्रॉफिट को 3 इयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. देन बी रिटायर्स ऑन 31 December 2005. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यू टू बी. अब बी रिटायरमेंट हो गया, बी का रिटायरमेंट हो गया. अब रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल कैलकुलेट करना है, तो हाउ मच गुडविल शुड बी पेड टू बी. पहले ये मालूम करेंगे व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फर्म. पूरी पार्टनरशिप फर्म का गुडविल कितना होता, पहले ये मालूम करेंगे. फिर उसका 20 का शेयर, यानी प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है कि बी रिटायर हो रहा तो बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है. दैट इज द क्वेश्चन. नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 years वेर एज फॉलोज. 2001 32,000, 2002 38,000, 2003 40,000, then 2004 29,000, then 2005 41,000. So we have to calculate the value of goodwill. See here carefully. Problems on valuation of goodwill. Short problem question, short answer questions. Year. प्रॉब्लम में दे दिया 2001 2 3 4 5 5 साल के प्रॉफिट दे दिया 32,000, 38,000, 40,000, 29,000, 41,000. द टोटल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 5 years आर 1,80,000. एवरेज प्रॉफिट मालूम करना है तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 36,000. अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस. तो प्रॉब्लम में दे दिया 3 years ऑफ परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years. तो पास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना. तो 36,000 इंटू 3 1,08,000. तो 1,08,000 इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. पूरे फर्म का गुडविल 1,08,000. लेकिन प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यू टू बी. बी रिटायर हो रहा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन. स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में दे दिया एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/5. You can see the problem. B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/5 है, तो 1,08,000 में से 2/5 शेयर विल गो टू B. तो B's share of goodwill is equal to 1,08,000 into 2/5, 43,200 is the share of goodwill of retiring partner B. That's it. See the second problem. Pravek Limited agrees to purchase the business carried on by Rohan Limited. Pravek Limited purchaser है, बिजनेस परचेस कर रहा. किसका बिजनेस? रोहन का. रोहन सेलर है. गुडविल फॉर दिस पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूएट 3 years परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट. प्रीवियस प्रॉब्लम में सिंपल एवरेज लिए थे, पूरे प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दिए, ये सिंपल एवरेज. लेकिन अब जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, इट इज स्पेसिफिकली आस्किंग यू टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज. Weighted average profit of the previous 5 years. The weights to be used are first year 1, second year 2, third year 3, fourth year 4 and fifth year 5. तो क्या वेट्स लेना, पूरे दे दिया. प्रॉफिट्स फॉर द 5 years आर फर्स्ट ईयर 30,000, सेकंड ईयर 36, थर्ड ईयर 45, फोर्थ ईयर 49, फिफ्थ ईयर 52. तो पूरे प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में है.
30 से 36 हुआ, 30 45 हुआ, 49 हुआ, 52, तो इंक्रीजिंग प्रॉफिट दिया. Now we have to calculate the goodwill by weighted average profit. Calculation of weighted average profit. तो प्रॉब्लम में ईयर दे दिया 1 2 3 4 5, प्रॉफिट्स दे दिया फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर 36, 45, 49, 52. वेट्स आर गिवन. फर्स्ट ईयर के लिए प्रॉब्लम में दे दिया वेट 1 लो, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, फोर्थ ईयर के लिए 4, फिफ्थ ईयर के लिए 5. These are the weights given in the problem. Now product. Product means multiply. Multiply the profit with weight. P और W को multiply करेंगे, PW आएगा. तो 30,000 into 1, 30,000. 36,000 into 2, 72,000. 45,000 into 3, 135. 49 into 4, 196. 52 into 5, 2,60,000. Now take the total of product. Total of product PW. PW का total 6,93,000. Weights का total 15. तो weighted average profit is equal to summation PW divided by summation W. तो PW का total 6,93,000 और W का total 15. तो 6,93,000 divided by 15, 46,200. तो ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है? हियर वी हैव टेकन सिंपल एवरेज और हियर वी हैव टेकन वेटेड एवरेज. प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली कहा है वेटेड एवरेज. यहाँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा, 32 से 38, 40 पे 29 हो गया. फ्लक्चुएट होता सिंपल एवरेज, इंक्रीजिंग अगर रहा तो वेटेड एवरेज. नाउ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस. प्रॉब्लम में दे दिया 3 इयर्स ऑफ परचेस. तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा 46,200 into 3 is equal to 1,38,600. This is the goodwill. Now third problem. On the basis of the following information, you are required to calculate capital employed and average capital employed. Actually capital employed की जरूरत normal profit मालूम करने के लिए होती है. Without capital employed, we cannot calculate normal profit. और normal profit नहीं आएगा तो super profit नहीं आएगा. सुपर प्रॉफिट नहीं आए तो गुडविल नहीं आएगा. तो गुडविल डिपेंड करता नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड करता कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर. तो अब हमको प्रैक्टिस करना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा मालूम करेंगे. तो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या दिया? बैलेंस शीट दे दिया है. एसेट्स में गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, करंट एसेट्स. कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करते वक्त गुडविल को कंसिडर नहीं करना. अभी प्रीवियस थ्योरी सेशन में बताया हूं, 3 एसेट्स को छोड़ देते हैं. एक गुडविल है, एक फिक्टिशियस एसेट है, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है. ये 3 एसेट्स को छोड़कर बाकी के एसेट्स लेना है. तो यहां गुडविल दिया है, नहीं लेंगे. बिल्डिंग, मशीनरी, करंट एसेट, ये 3 एसेट लेंगे. कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होता, रिजर्व्स आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होता, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर नहीं होता. हाँ, डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट. अब कंसर्न्ड एसेट कौन सा है? बिल्डिंग है. बिल्डिंग में से बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, मशीनरी में से मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. डिबेंचर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये 2 आउटसाइड लायबिलिटीज है. आउटसाइड लायबिलिटीज आर ओनली 2, डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स. तो वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वेटेड एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. एसेट्स, बिल्डिंग. एसेट साइड पे देखिए, बिल्डिंग का वैल्यू दे दिया 1,75,000 और लायबिलिटी साइड डेप्रिसिएशन फंड कितना है बिल्डिंग के ऊपर? 10,000. तो ये 1,75,000 में से 10 निकाल दो, 1,65,000. उसी तरह मशीनरी का वैल्यू एसेट साइड पे दिया 1,40,000 और मशीनरी का डिप्रिसिएशन 40,000. तो 140 माइनस 40, 1 लाख. करंट एसेट्स, एसेट साइड जो दे दिया 1,10,000, सेम आई हैव टेकन 3,10,000. टेक द टोटल ऑफ द एसेट्स 5,75,000. आउटसाइड लायबिलिटीज में 2 ही लायबिलिटी है, डिबेंचर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स. डिबेंचर्स 1 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, 1,30,000. कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 4,45,000. एक आंसर आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर 4,45,000. इसमें से हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका आधा प्रॉफिट, हाफ प्रॉफिट निकाल दें. तो करंट ईयर का प्रॉफिट लायबिलिटी साइड दे दिया, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 50,000. तो 50,000 का हाफ 25,000 माइनस कर दो 25,000, 4,20,000 इज द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. प्रेफरेबल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं देता तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मालूम कर सकते. इन दैट केस वी टेक कैपिटल एम्प्लॉयड. तो अगर नहीं दिया प्रॉफिट तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे, अगर प्रॉफिट दिया तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करेंगे. नाउ नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम. On the basis of the following info, balance sheet and subjoined information, ascertain the capital employed in the business. Exactly similar to this one. Capital employed और average capital employed मालूम करेंगे.
बैलेंस शीट में दे दिया गुडविल, याद रखिए गुडविल नहीं लेते फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रेमिसेस, मशीनरी एट कॉस्ट, व्हीकल एट कॉस्ट, स्टॉक, डेटार्स, इन्वेस्टमेंट्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स। देखिए दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेडिंग नहीं। कभी कंपनी के पास ज्यादा पैसा रहता तो बेकार पैसा रखने के बजाय वो पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, तो उसको नॉन ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता, अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल मशीन है, मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स के बाद मशीन बेकार हो जाएगा, तो मशीन दूसरा रिप्लेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो अभी से हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि 10 ईयर्स के बाद जब मशीन खराब हो जाएगा तो फिर वो पैसे इन्वेस्ट जो करे हुए हैं वो पैसों से नया मशीन रिप्लेस करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट को ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, नॉन ट्रेड नहीं कहते। तो अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहा तो वी कंसिडर, वी शुड टेक, लेना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर दिया तो नहीं लेना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया तो नहीं लेना। तो हमारे प्रॉब्लम में ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स आर मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स, लेंगे। बैंक बैलेंस लेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अ फिक्टिशियस एसेट, इमेजिनरी एसेट। ये प्रिलिमिनरी एसेट कोई रियल एसेट नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, नहीं लेना। तो ये पूरे एसेट्स में से गुडविल को नहीं लेंगे और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को नहीं लेंगे, बाकी ये सारे लेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेंगे, रिजर्व्स नहीं लेंगे, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर नहीं लेंगे। 6% डिबेंचर्स ये लेंगे, ये आउटसाइड लायबिलिटी। सेक्योर्ड लोन आउटसाइड लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आउटसाइड लायबिलिटी। तो 4 आउटसाइड लायबिलिटीज। नेक्स्ट लाइन, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेमिसेस। अब देखिए बैलेंस शीट का वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, दो में से कौन सा वैल्यू लेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। अब बैलेंस शीट में प्रेमिसेस का वैल्यू 2 लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपीस, लेकिन एडजस्टमेंट में दे रहा कि प्रेमिसेस का वैल्यू 6 लाख है, तो वी शुड नॉट टेक 2 लाख, बैलेंस शीट का 2 लाख नहीं लेना, करंट वैल्यू लेना, चाहे करंट वैल्यू ज्यादा हो या कम हो, करंट वैल्यू वी शुड टेक। Premises 6 lakh, machinery 12 lakh, investment 7,50,000, stock is to be valued at book value, sundry debtors to the bad to the extent of 10%. Sundry debtors में से 10% निकाल देंगे बैड डेट से। Vehicle is valued 14,000. अब जो पूरे assets के वैल्यू प्रेजेंट वैल्यूज दिया वो वैल्यूज हम लेंगे, बैलेंस शीट के वैल्यू नहीं देंगे। हाँ, जो प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया वो बैलेंस शीट वैल्यू ले सकते हैं, राइट। तो हियर calculation of capital employed and average capital employed. Premises 6 lakh, agreed value. Then machinery 12 lakh, vehicle 14,000, stock 6,15,000. Sundry debtors balance sheet में 2 लाख रुपया दिया, लेकिन adjustment में कह रहा है कि उसमें से 10% bad debts निकाल दो। तो 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 माइनस कर दो 1,80,000। Investment 7,50,000, present value will take, not balance sheet value. और investment इसलिए ले रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स, इट्स अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देन बैंक बैलेंस डायरेक्टली विल टेक 34,55,000 इज द टोटल ऑफ एसेट्स। आउटसाइड लायबिलिटी में डिबेंचर्स, सेक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये 4 आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, 20,55,000 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मालूम करना है तो हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर माइनस करें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड 20,55,000 लेस हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, हाफ ऑफ। तो करंट ईयर का प्रॉफिट लायबिलिटी साइड दिया, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर 5,66,000। तो 5,66,000 का हाफ 2,83,000। तो 20,55,000 minus 2,83,000, 17,72,000. This is the average capital employed. So we have completed 1, 2, 3, 4. 4 problems we have completed. Come on, now we'll start problem number 5. See the 5th problem carefully. From the following particulars, compute the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profits, taking average of the last 4 years. Previous problems we have done on simple average method. Now we have to apply super profit method. First time we are applying the method super profit. So super profit taking average of the last 4 years. Then capital invested means capital employed, that is 10 lakh. Market rate of interest is 12%, whereas rate of risk return is 4%. So risk free rate
बगैर रिस्क के मार्केट रिटर्न जो है 12% है, लेकिन ये कंपनी में जो रिस्क है वो रिस्क 4%। तो टोटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ कंपनी इज 16%। तो क्या करना आप, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिस्क रिटर्न को ऐड कर देना, तो कंपनी का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% प्लस 4%, 16% is the normal rate of return in this type of companies. Then trading results. ट्रेडिंग रिजल्ट्स का मतलब प्रॉफिट कितना है, 2007 में प्रॉफिट 3 लाख है, 2008 में 3,50,000, 2009 में 4 लाख, 2010 में 5,50,000। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, द प्रॉफिट्स आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो एफएमपी कैलकुलेट करते वक्त हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अब एवरेज दो टाइप का होता है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग। एक साल ज्यादा रहना, एक साल कम होना, फिर ज्यादा होना, फिर कम होना। अगर फ्लक्चुएट हुआ तो सिंपल एवरेज, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में बता रहा तो वेटेड एवरेज। तो ये प्रॉब्लम में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, पहले 3 लाख, फिर 350, फिर 4 लाख, फिर 550। तो सिंस द प्रॉफिट्स आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट for calculating FMP, right? Now see the solution carefully. Calculation of goodwill by super profit method. Normal rate of return, इसको NRR कहते हैं। आने वाले प्रॉब्लम में, एवरी प्रॉब्लम में NRR यूज करेंगे। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कंपनी में नॉर्मली क्या रेट ऑफ रिटर्न है, तो दैट इज नथिंग बट NRR 12% प्लस 14%। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 12% है और कंपनी का रिस्क जो है 4%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16%। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर। ये फॉर्मूला प्रीवियस थ्योरी क्लास में मैं एक्सप्लेन किया हूं। तो एनआरआर कैलकुलेट करने के लिए वी मल्टीप्लाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हियर इन द प्रॉब्लम कैपिटल इन्वेस्टेड डायरेक्टली दे दिया 10 लाख रुपीस और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16%, तो 10 लाख इंटू 16%, 1,60,000। दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट। Since the profits are in increasing trend, so we calculate weighted average profit. तो प्रॉब्लम में नहीं दिया कि weighted average profit कैलकुलेट करना है, लेकिन हमको मालूम है अगर प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में शो कर रहा तो weighted average profit। तो ईयर 2007, 8, 9, 10 प्रॉफिट्स गिवन इन द प्रॉब्लम 3 लाख, 350, 4 लाख, 450। अब वेट्स जो देंगे वो हाईएस्ट वेट जो देंगे वो रिसेंट ईयर में, तो रिसेंट ईयर्स 2010 है, रिसेंट ईयर 2010 है, इसको हाईएस्ट वेट क्या देंगे, 4 देंगे। तो वेट जो देंगे 1, 2, 3, 4। नाउ मल्टीप्लाई प्रॉफिट इनटू वेट, पीडब्ल्यू। 3 लाख इंटू 1, 3 लाख, 350 इंटू 2, 7 लाख, 4 लाख इंटू 3, 1 लाख, 12 लाख, 5,50,000 इंटू 4, 22 लाख। द टोटल ऑफ पीडब्ल्यू प्रोडक्ट इज 44 लाख, द टोटल ऑफ वेट इज 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है समेशन पीडब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। Summation PW का टोटल 44 लाख डिवाइड बाय 10, 4,40,000 इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट रहेगा वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज द पास्ट एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड फॉर फ्यूचर चेंजेस। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में फ्यूचर चेंजेस कुछ भी नहीं दिया, फ्यूचर चेंजेस नहीं दिया, तो व्हाट एवर द एवरेज पास्ट एवरेज प्रॉफिट दैट इटसेल्फ विल बी द FMP। तो FMP will be 4,40,000। Now super profit का फॉर्मूला, super profit is equal to FMP minus NP। तो FMP 4,40,000 और NP 1,60,000। तो 440 minus 160, 280 is the super profit। Now goodwill का फॉर्मूला super profit into number of years of purchase। तो 2,80,000 into 3, 8,40,000 is the goodwill। That's it। Next problem, problem number 6। The following are the profits of a business for 3 years. 2006, 50,000, 2007, 60,000, 2008, 70,000. तो profits again increasing बता रहा, 50, 60, 70. The capital employed was 4 lakh. Capital employed की जरूरत पड़ती है normal profit मालूम करने के लिए। तो capital employed 4 lakh and the normal rate of return NRR expected in similar business is 10%. तो कैपिटल इन्वेस्टेड दे दिया, एनआरआर दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मल प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे तो एफएमपी। कैलकुलेट गुडविल बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। 2 years परचेज, तो जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 2 से
मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल आ जाएगा. सी कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2006, 7, 8 3 years 50, 60, 70 इंक्रीजिंग ट्रेंड में बता रहा, इसलिए वेट ले लिए 1, 2, 3. प्रोडक्ट्स आर 50,000 into 1, 60,000 into 2, 70,000 into 3. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट 3,80,000, टोटल ऑफ वेट 6. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट समेशन PW by summation W, 3,80,000 divided by 6, 63,333. This is the weighted average profit and this will be the FMP. जो भी पास्ट एवरेज प्रॉफिट रहेगा वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो जाएगा. तो FMP 63. नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR. तो कैपिटल इन्वेस्टेड 4 लाख इनटू 10% 40,000. Now super profit is equal to FMP minus NP. 63,333 minus 40,000, 23,333 is the super profit. Now goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. So 23,333 into 2 is 46,666. This is the value of goodwill. Sixth problem completed. Seventh problem you see. For the following, calculate the value of goodwill at 3 years purchase of super profit. Same, average capital employed in business is 10 lakh. Then net profit for the past 3 years, 1,35,000, 1,60,000, 1,40,000. यहाँ पर प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट हो रहा, वेटेड एवरेज नहीं मालूम करता, सिंपल एवरेज. क्योंकि 135 से 160 बढ़ गया, 160 के बाद 140 आ गया, कम हो गया, तो प्रॉफिट्स आर नॉट शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड. So we should not calculate weighted, we should calculate simple average. Then rate of return expected NRR 10%. Fair remuneration to the organizers is 20,000 per annum. देखिए FMP कैलकुलेट करने के लिए past average profit adjusted for future changes. तो 3 प्रॉफिट्स दे दिया, उसका एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे. अब फ्यूचर में एक चेंज दिया प्रॉब्लम में, प्रीवियस प्रॉब्लम में नहीं दिया था, इसीलिए खाली जो भी पास्ट एवरेज प्रॉफिट है वही FMP लिए थे. लेकिन ये प्रॉब्लम में फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स का फेयर रेम्यूनरेशन होगा 20,000. दिस 20,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट. तो पहले एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे, उसमें फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स को माइनस कर देंगे तो FMP आएगा. और FMP में से नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल दो, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करो, गेट द गुडविल. दैट्स इट. नाउ सी केयरफुल. नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR 10 लाख इनटू 10% 1 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. अब एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, 1,35,000, 1,60,000, 140 डिवाइड बाय 3. तो डिवाइड बाय 3 करने के बाद एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,45,000. अब 1,45,000 पास्ट एवरेज प्रॉफिट है. अब इसमें से फ्यूचर एडजस्टमेंट, फ्यूचर चेंजेस, एक एक्सपेंस होने वाला है, वो एक्सपेंस फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, वो निकाल देंगे. फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स माइनस कर दो 20,000, तो 145 माइनस 20, 1,25,000 इज द FMP. एक बार FMP और NP आ गया तो 99% प्रॉब्लम फिनिश्ड. सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट SP, super profit. Super profit is equal to FMP minus NP. So 1,25,000 minus 1,25,000 is the super profit. Then goodwill का formula, super profit into number of years of purchase, 25,000 into 3, that is 75,000. That's it. Hope you will find these problems very, very simple compared to the other problems of company final accounts or issue of shares, issue of debentures. So this topic, valuation of goodwill and valuation of share, is very, very easy. After listening the lecture, just to practice these problems, you'll get a very good command on this topic of valuation of goodwill and valuation of shares. Come on, now we'll start the main problems. So far we have completed the short answer questions. Now see the first main problem. Rahul Limited proposes to purchase the business carried on by Rupesh. So Rahul Limited is the purchasing company and seller, vendor is the Rupesh. Goodwill for this purpose is agreed to be valued at 3 years purchase of the weighted average profit of the past 4 years. तो ये प्रॉब्लम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करना है. तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड आर 2002 1, 2003 2, 2004 3, 2005 4.
तो वेट्स क्या लेना है, प्रॉब्लम में दे दिया 1 2 3 4। द प्रॉफिट्स फॉर दिस ईयर्स आर 2002 में 1 लाख का प्रॉफिट है, 2003 में 1,20,000 है, 2004 में 1 लाख है और 2005 में 1,50,000। ये प्रॉफिट्स दे दिया 4 साल का। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रॉफिट्स दिया है ये प्रॉफिट्स इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, तो कुछ एडजस्टमेंट करके सही प्रॉफिट मालूम करना, करेक्ट प्रॉफिट मालूम करना। जब करेक्ट प्रॉफिट मालूम हो गया तो उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो डायरेक्टली वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं मालूम करना क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट करना है। तो व्हाट आर द एडजस्टमेंट? ऑन 1 सितंबर 2004, on 1st September 2004, a major repair was made in respect of plant, incurring 30,000, which amount was charged to revenue account। देखिए, एक प्लांट एंड मशीनरी पर मेजर रिपेयर करे, जब मेजर रिपेयर करे तो कैपिटलाइज कर देना। नॉर्मल रिपेयर्स अगर रहेंगे, रिकरिंग रिपेयर्स रहेंगे तो रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। रिपेयर्स दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू रिपेयर्स, एक कैपिटल रिपेयर्स। अगर रेवेन्यू रिपेयर्स है यानी रूटीन रिपेयर्स, एक्सपेक्टेड रिपेयर्स, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करते हैं, रेवेन्यू अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। लेकिन जब कैपिटल रिपेयर्स अगर रहेंगे, मेजर रिपेयर अगर हुआ तो वो मेजर रिपेयर को कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज करने का मतलब मशीन के ऊपर चार्ज कर देना, मशीन के वैल्यू को बढ़ा देना। तब यहां पर क्या हुआ, इन आवर प्रॉब्लम 1 सितंबर 2004 में एक मेजर रिपेयर हुआ, 30,000 रुपीज का मेजर रिपेयर। ये 30,000 रुपीज मशीनरी में ऐड कर देना था, लेकिन गलती से उसको रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दी। मेजर रिपेयर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। कौन से ईयर का प्रॉफिट कम हो गया? 2004 के ईयर में प्रॉफिट कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2004 के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, 2004 के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो अब यहां पर केयरफुली देखिए, असरटेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रॉब्लम में 4 साल का डाटा 2002, 3, 4, 5 दे दिया। अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट प्रॉब्लम में स्पेसिफाई करा वो अनएडजस्टेड है, बगैर एडजस्टमेंट। अब हमको एडजस्टमेंट करना है, तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स आर गिवन 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख, 1 लाख 50। अब एडजस्टमेंट क्या है? प्लस करेंगे मेजर रिपेयर्स रॉन्गली चार्ज टू P&L अकाउंट ऑन 1 सितंबर 2004। गलती से अकाउंटेंट क्या करा, जो 30,000 रुपए का मेजर रिपेयर हुआ था उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। नहीं करना, मेजर रिपेयर हुआ तो मशीन में ऐड करना, मगर गलती से P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया। P&L अकाउंट में डेबिट करने से प्रॉफिट कम हो गया। कौन से ईयर का प्रॉफिट कम हो गया? 2004 का। अब हमको बढ़ाना है, वो 30,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ा देना है। कौन से ईयर में? 2004। इसलिए ऐड प्लस कर दिया 30,000। तो पहले 1 लाख रुपीस प्रॉफिट था, अब प्लस 1 लाख 30,000 हो गया, तो 1,30,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। कौन से ईयर का? 2004 का। अब आगे देखिए और एडजस्टमेंट क्या पूछ रहा है, सेम पैराग्राफ। द सेट सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन। अब उसमें से रेवेन्यू अकाउंट में से निकाल के कैपिटलाइज करो बोल रहा हूं, यानी बैलेंस शीट में मशीनरी में ऐड कर दो। एंड सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन एट 10% पर एनम एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये जो कैपिटलाइज कर रहे हैं, मशीन में बढ़ा दे रहे हैं, तो मशीन में बढ़ा देने से डिप्रिसिएशन ऑन मशीन होगा ना, मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन कर रहे हैं। अब मशीन में 30,000 रुपए ऐड कर देंगे तो मशीन का वैल्यू बढ़ जाएगा और डिप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा, तो वो 30,000 रुपीज के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो कितना डिप्रिसिएशन होगा? देखिए, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2004, 10% ऑफ 30,000। प्रॉब्लम में दे दिया 10%, 30,000 का 10% 3,000। लेकिन 3,000 एक साल का है। ये मेजर रिपेयर कब हुआ था? ये 1 सितंबर 2004। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। हमको 4 महीने का डिप्रिसिएशन चाहिए, तो इंटू 4/12। अगर 10% ऑफ 30,000 कैलकुलेट करेंगे 3,000 आएगा, तो ये 1 साल का है। हमको 1 साल का नहीं चाहिए, 1 ईयर का नहीं चाहिए, हमको 4 मंथ्स का चाहिए। 4/12 1,000, तो 1,000 रुपए डिप्रिसिएशन होगा। कौन से ईयर में? 2004 में। और डिप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। जब P&L अकाउंट को डिप्रिसिएशन डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे। माइनस डिप्रिसिएशन ऑन मेजर रिपेयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। तो 1,000 रुपीज माइनस कर दिए,
तो 2004 के प्रॉफिट में 30,000 ऐड करें और 1,000 माइनस कर दें, राइट। अब नेक्स्ट ईयर 2005 ये मशीनरी कैरी ओवर होगा ना, 2004 से मशीन फिर 2005 में भी जाएगा। तो एक्चुअली मेजर रिपेयर 30,000 का हुआ था, वो 30,000 रुपीज में से डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड कर चुके हैं, 1,000। तो 30,000 में से 1,000 माइनस कर दो, उसका WDV 29,000। तो WDV ऑफ द मशीन इज 29,000 फॉर द ईयर 2005। अब 2005 में डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 29,000, 30,000 माइनस 1,000, 29,000। तो 29,000 का 10% 2,900। तो 2,900 will be the depreciation for the year 2005। ये 2005 में depreciation 2,900 माइनस कर, depreciation will be debited to P&L account, माइनस कर देना, प्रॉफिट कम हो जाएगा। One adjustment completed. Next adjustment, the closing stock for the year 2003 was overvalued by 10,000। 2003 में फिर गड़बड़ हो गया। 2003 का जब P&L अकाउंट बनाए थे तो P&L अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज ज्यादा ले लिए, और क्लोजिंग स्टॉक जब ज्यादा ले लिए तो प्रॉफिट ज्यादा होता। मोर क्लोजिंग स्टॉक मोर प्रॉफिट। रिमेंबर, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाएंगे, एवरीबॉडी हैव प्रिपेयर्ड द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन ऑन द क्रेडिट साइड। जब क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर 2003 में क्लोजिंग स्टॉक वाज टेकन मोर बाय 10,000, सो ग्रॉस प्रॉफिट वाज मोर। अब माइनस कर देना, 10,000 रुपए माइनस कर देंगे कौन से प्रॉफिट में, 2003 के। ये 2003 के प्रॉफिट में से माइनस 10,000। क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 2003 वाज ओवर वैल्यूड, माइनस कर देंगे। मगर एक पॉइंट याद रखिए, 1 ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता। अब 2003 के क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ कर दिए, गलत ले लिए, तो 2003 का क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली विल बिकम ओपनिंग स्टॉक फॉर 2004। ऑटोमेटिकली 2004 का ओपनिंग स्टॉक। तो जब क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा ले लिए तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा हो गया। कौन से ईयर का ज्यादा हो गया, 2004 का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2004, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2004 वाज ओवरवैल्यूड। तो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक, आने वाले साल का ओपनिंग स्टॉक। तो 2003 का क्लोजिंग स्टॉक, 2004 का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवरवैल्यूड हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाता, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवरवैल्यूड हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाता। मोर ओपनिंग स्टॉक लेस प्रॉफिट, मोर क्लोजिंग स्टॉक मोर प्रॉफिट। दोनों उल्टा है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लेते हैं। ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक लेने से प्रॉफिट ज्यादा हो जाता, ज्यादा ओपनिंग स्टॉक लेने से प्रॉफिट कम हो जाता। तो यहां पर ओवर वैल्यू करने से प्रॉफिट कम हो गया। कौन से ईयर का प्रॉफिट कम हो गया, 2004 का। अब माइनस कर देंगे, या माइनस कर देंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक कम हो, प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट कम हो गया तो ऐड करना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2004 वाज ओवरवैल्यूड ऐड। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से माइनस कर दिया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से ऐड कर दिए 2004 का। दो एडजस्टमेंट हो गए। थर्ड, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 25,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। एवरी ईयर 25,000 रुपए का मैनेजमेंट कॉस्ट लगेगा। तो ये मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस कर देंगे, एनुअल चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस 25,000 इन ऑल द ईयर्स। एवरी ईयर 25,000 चार्ज करो, बता रहा है, माइनस कर दिया। अब 1 लाख माइनस 25,000, 75,000। 1,20,000 माइनस 10,000 माइनस 25,000, 85,000। 1 लाख प्लस 30,000 माइनस 1,000 प्लस 10,000 माइनस 25,000, 1,14,000। उसी तरह 1,50,000 माइनस 2,900 माइनस 25,000, 1,22,100। दिस इज द एडजस्टेड प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट अब ये डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशंस। नाउ विल फाइंड आउट द वेटेड एवरेज। प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 75 से 85, 85 से 114, 114 से 122। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, द प्रॉफिट्स आर शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, सो वी कैलकुलेट weighted average profit. Calculation of weighted average profit, year 2002, 3, 4, 5. Profits, just now we have calculated adjusted profit. Weights are given in the problem, 1, 2, 3, 4. Problem में दे दिया. Now multiply 75,000 into 1, 85,000 into 2, 1,14,000 into 3,
120 to 100 into 4. So total product is 10,75,400 divided by 10. तो weighted average profit आ गया 1,07,540. अब goodwill is equal to average profit into number of years. 1,07,540 into 3. 3,22,620 is the goodwill according to average profit method. That's all. This is the first problem. Now, second problem you see. From the following balance sheet of Soft Look Company Limited as of 31st March 2010, find out the value of goodwill. तो बैलेंस शीट दे दिया, कंप्लीट बैलेंस शीट न्यू फॉर्मेट में. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयरहोल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 1 4,50,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस सेकंड नोट 45,000, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 1 लाख, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल 30,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 35,000. द टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड 6,60,000. assets, non current assets, fixed assets, tangible assets 3,50,000, intangible assets 25,000, non current investment 30,000, other non-current assets 15,000. Current assets में inventories, trade receivable, cash and cash equivalent 6,60,000. Complete balance sheet is given of the company. Now notes. अभी जो note number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 notes है. अब उसमें क्या क्या है यहाँ पर? Notes to accounts दे दिया. Share capital में 45,000, equity share of 10 is fully paid. Reserves and surplus में एक ही item है P&L account. Long term borrowings में 9% debenture. Trade payable में sundry creditors. Short term provisions में provision for taxation. Tangible assets में land and building, plant and machinery. Intangible assets में goodwill, non purchase. Non current investments में long term investments face value 25,000 at the rate of 5%. अब ये non current investment ये नहीं दिया कि ये trade investment है या non trade investment. तो हम ये assume करेंगे कि it is a non trade investment. ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर रहता तो प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली देता इन्वेस्टमेंट्स आर मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम. लेकिन ये प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं दिया तो एज्यूम करेंगे इट्स ए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सो वी शुड नॉट टेक इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. जब कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करेंगे तो तीन एसेट्स को नहीं लेंगे. गुडविल दिया नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, फिक्टिशियस एसेट अगर दिया तो वो भी नहीं लेंगे. अब ये इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट नहीं लिए तो उसके ऊपर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेना. इन्वेस्टमेंट वी शुड नॉट टेक एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वी शुड नॉट टेक. रिटर्न क्या रेट से है? 5% ऑफ 25,000. 5% ऑफ 25,000 1,250 होता, नहीं लेना उसको, रिटर्न निकाल देना प्रॉफिट में से. नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस एसेट है, इसको भी लेना. तो ये पूरी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे तीन एसेट्स है जो कि हम नहीं लेने वाले हैं. कौन से? एक इनटैंजिबल एसेट गुडविल दिया 25,000 नहीं लेंगे, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, और लास्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड नॉट टेक. ये तीन एसेट्स को छोड़कर बाकी के सारे एसेट्स ले लेंगे. गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये प्रॉब्लम है, सुपर प्रॉफिट चाहिए तो एफएमपी एनपीएम को मालूम करना है. एवरेज प्रॉफिट इज 75,000 फॉर द लास्ट 3 years. तो एफएमपी मालूम करने के लिए हमको पास्ट एवरेज प्रॉफिट चाहिए. ये पास्ट एवरेज प्रॉफिट 75,000 दे दिया. अब इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है उसको निकाल देंगे. इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड. फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%. दिस इज नथिंग बट एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. दैट्स इट. नाउ सी केयरफुली, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम. From here, calculation of capital employed. Capital employed मालूम करने के लिए we take all assets except 3 assets. Goodwill, investment, fictitious asset, ये 3 asset को छोड़कर बाकी के सारे assets ले लें. तो प्रॉब्लम है tangible fixed asset दे दिया 3,50,000 टोटल ले लिए. Inventories 1,80,000, trade receivable 50,000, cash and cash equivalent 10,000. Total assets 5,90,000. अब outside liability में 3 outside liability है, long term borrowings, debentures, ट्रेड रिसीवेबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ये 3 आउटसाइड लायबिलिटीज है. तीनों आउटसाइड लायबिलिटी का टोटल हो गया 1,65,000. तो 5,90,000 minus 1,65,000 you will get 4,25,000. This 4,25,000 is called capital employed. It is called capital employed. अब नॉर्मल प्रॉफिट मालूम करना है. नॉर्मल प्रॉफिट मालूम करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न.
तो कैपिटल एम्प्लॉयड 4,25,000 अभी मालूम कर लिए, एनआरआर प्रॉब्लम में दे दिया 10%, लास्ट लाइन। तो 42,500 इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अब एफएमपी कैलकुलेट करने के लिए पास्ट एवरेज प्रॉफिट, तो प्रॉब्लम में एवरेज प्रॉफिट 75,000 दिया, लेकिन ये 75,000 में से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट नहीं लिया तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा उसको भी निकाल देना। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट क्या रेट से, 5% ऑफ 25,000। पास्ट एवरेज प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, 5% ऑफ 25,000, 1250। ये निकाल दो, 75,000 माइनस 1250, 73,750 इज द FMP, future maintainable profit. Now super profit is equal to FMP minus NP. 73,750 minus 42,500, 31,250 is the super profit. That's all. Now simply we have to substitute in the formula. Goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. So 31,250 into 5 years of purchase, 1,56,250. This is the value of the goodwill. Now remember one note. For calculating capital employed, non-trade investment should not be taken. ये capital employed मालूम करते वक्त non-trade investment नहीं लेना. Similarly, the return on non-trade investment should also not be taken. तो investment जब नहीं लिया तो investment के ऊपर जो return आ रहा, profit आ रहा, वो profit भी नहीं लेना. तो percentage दे दिया उन्हें, 5% profit earn कर रहे हैं, 25,000 का 5%, 1250, तो 1250 minus कर दे. That's it. So these are the two main problems we have done. Hope you understood. I have done my complete job. I have explained you to the best of my ability. Now it's your turn.